Hello students, this is Dr. Nupur. In this video, we'll be discussing about the kingdom Protista. The kingdom Protista includes all the unicellular eukaryotes. इसको सबसे ज़्यादा controversial kingdom भी माना जाता है क्योंकि इसमें plant like, animal like and fungi like organisms involved हैं. And according to the 5 kingdom classification given by the Whitaker, Chlamydomonas and Chlorella, which are having the cell wall and earlier placed in the plant kingdom, are placed together along with the Paramecium and Amoeba, which do not have cell wall and were earlier placed in the animal kingdom. तो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास को पैरामीशियम और अमीबा के साथ प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर इंक्लूड करा गया है अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द Whitaker. Clear? So let us note down these points. So it includes unicellular eukaryotes. And according to 5 kingdom classification, given by Whitaker, Chlamydomonas and Chlorella are placed along with Paramecium and Amoeba in kingdom Protista. Chlamydomonas and Chlorella earlier किसमें included थे in the plant kingdom and Paramecium and Amoeba were included in the animal kingdom. तो इसको plant kingdom से हटा दिया गया और इसको animal kingdom से हटा दिया गया and they were placed together in the kingdom Protista by Whitaker in his 5 kingdom classification. Now अगर हम बात करें Protista में क्या क्या included है, the kingdom Protista includes chrysophytes, dinoflagellates, then euglenoids, slime molds and protozoans. Clear? So we'll study these stepwise. Now let us talk about the reproduction in the protist. If we talk about reproduction, protist can reproduce both asexually as well as sexually. अगर हम asexual reproduction की बात करते हैं तो जो protistans हैं they can reproduce either by the binary fission or by the production of the spores. Clear? तो यहाँ पर लिख लेते हैं asexual reproduction जो होगा that occurs either by the binary fission. Binary fission is mostly seen in case of diatoms, which are the chrysophytes, then dinoflagellates and euglenoids. Clear? Next जो आएगा इसके अंदर that is by the formation of the spores. These spores are generally formed inside the structure that is known as the sporangia, and by the rupture of the sporangia these spores are released and on germination they will form the new organism. So this is found in the case of the slime molds commonly. Clear?
सो बाइनरी फिशन किस में मिल रहा है? डायटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लियोनॉइड्स के अंदर. स्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर देखने को मिलता है? इन द केस ऑफ द slime molds. So that was about the asexual reproduction. Now if we talk about the sexual reproduction, it basically involves the formation and the fusion of the gametes, जिसको हम क्या कहते हैं? We also call it as a syngamy. So we'll write here, it involves formation and fusion of gametes, also referred to as the syngamy. Clear? Now जो sexual reproduction है या जो syngamy है, it can be again of different types. सबसे पहला जो हम लिखेंगे that is the isogamy. आइसोगैमी जो होगा, यहाँ पर जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली दे कैन बी सिमिलर और डिसिमिलर. मॉर्फोलॉजिकली से क्या मतलब है? शेप, साइज, स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. और फिजियोलॉजिकली से क्या मतलब है? रिलेटेड टू फंक्शन और जेनेटिकली. क्लियर? तो यहाँ अपन लिखेंगे आइसोगैमी. इन इट द फ्यूजिंग गैमीट्स are morphologically similar but physiologically they can be similar और dissimilar. Similar भी हो सकते हैं और dissimilar भी हो सकते हैं. सो दैट वॉज अबाउट द आइसोगैमी. क्लियर? सेकेंड जो आता है दैट इज द एनाइसोगैमी. यहाँ पर आइसो का मतलब था सिमिलर और मेन स्ट्रेस जो अपन दे रहे हैं वो किस पे दे रहे हैं? दैट इज मॉर्फोलॉजिकली. तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स के बीच में क्या होगा? फ्यूजन होगा. यहाँ जब हम बात करें एनाइसो, एनाइसो का मतलब होता है डिफरेंट. ठीक है, दैट इज डिसिमिलर. तो यहाँ पर जो फ्यूजन होगा वो टू मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट्स के बीच में देखने को मिलता है. तो यहाँ अपन लिखेंगे इन इट द फ्यूजिंग गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली dissimilar. मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली जनरली क्या होंगे? डिसिमिलर देखने को मिलेंगे. तो ये क्या हो गया? एनाइसोगैमी. थर्ड कैटेगरी जो आती है दैट इज oogammy. इट ऑल्सो डेवलप्स फ्रॉम द एनाइसोगैमी, यानी कि डिसिमिलर गैमीट्स होते हैं. यहाँ पर जो मेल गैमीट होता है वो क्या होगा? दैट इज स्मॉलर, एक्टिव एंड मोटाइल. वेरेरियास जो फीमेल गैमीट होता है दैट इज लार्जर, इनएक्टिव एंड नॉन मोटाइल. वो मोटाइल नहीं होता है. क्लियर? तो यहाँ अपन इसको लिख लेते हैं. इन इट मेल गैमीट इज स्मॉलर, एक्टिव एंड मोटाइल. जबकि अगर हम बात करें फीमेल गैमीट की तो इट विल बी लार्जर, इनएक्टिव एंड नॉन मोटाइल. क्या? तो यहाँ पर जो ये गैमीट्स बनेंगे इन केस ऑफ oogamous कंडीशन, जो गैमीट्स बनते हैं मेल एंड द फीमेल गैमीट, दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द सेक्स ऑर्गन्स. Clear? So that was all about the reproduction in the case of the protist. It occurs by two methods, that is asexual and sexual. Now we'll see the life cycle patterns in the case of protist.
लेट अस डिस्कस द लाइफ साइकिल पैटर्न्स इन द केस ऑफ द प्रोटिस्ट। जब हम प्रोटिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ दो टाइप के लाइफ साइकिल पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, दैट इज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑल्सो कॉल्ड एज द ज़ाइगोटिक मियोसिस और द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑल्सो कॉल्ड एज द गैमेटिक मियोसिस। Why it is so? Let us see. अगर हम बात करते हैं ज़ाइगोटिक मियोसिस की, तो जैसा नाम है वैसा काम है। यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगा इन द ज़ाइगोट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ ज़ाइगोटिक मियोसिस। क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडल्ट है वहाँ पर क्या है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब इसके अंदर माइटोसिस होगा, एज अ रिजल्ट क्या बनेंगे, हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे। फिर गैमीट्स का फ्यूजन होता है एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फ्यूजन से क्या बनता है, डिप्लॉइड ज़ाइगोट। n+n मिलकर क्या बनाएगा, डिप्लॉइड ज़ाइगोट। ये ज़ाइगोट जैसे ही बनेगा इसके अंदर क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, ज़ाइगोटिक मियोसिस। क्लियर? एज अ रिजल्ट क्या बनता है, हैप्लॉइड एडल्ट देखने को मिलेगा। नाउ इसके अंदर जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है, हैप्लॉइड फेज, एक्सेप्ट द ज़ाइगोट विच इज़ डिप्लॉइड। इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। क्लियर? इट इज़ फाउंड इन द केस ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट्स। नेक्स्ट अपन आते हैं गैमेटिक मियोसिस पे। गैमेटिक मियोसिस पे जैसा मैंने बताया, यहाँ पर क्या होगा, गैमीट्स के बनने के दौरान मियोसिस होगा, जैसा नाम है वैसा काम है। तो यहाँ पर जो एडल्ट है वो क्या होगा, डिप्लॉइड। अब एडल्ट डिप्लॉइड है और जो गैमीट्स बनाएगा ये वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पर गैमीट बनने के दौरान क्या देखने को मिलता है, मियोसिस देखने को मिलता है। ये जो हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे फिर इनका क्या होता है, फ्यूजन होता है, दैट इज सिनगैमी। और सिनगैमी से क्या बनेगा, डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनेगा। और इस डिप्लॉइड ज़ाइगोट से क्या होगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी, और ग्रोथ होगी इसके अंदर, एज अ रिजल्ट क्या बनता है, एडल्ट बनेगा विच इज़ ऑल्सो डिप्लॉइड। क्लियर? तो यहाँ पर एडल्ट क्या है, डिप्लॉइड है, ज़ाइगोट भी डिप्लॉइड है, केवल जो हैप्लॉइड फेज है दैट इज़ द गैमीट्स। क्लियर? तो इसीलिए जो डोमिनेंट फेज है इस लाइफ साइकिल में दैट इज़ द डिप्लॉइड फेज, इसीलिए इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कह देते हैं। सो दैट वाज अबाउट द लाइफ साइकिल पैटर्न्स ऑफ द प्रोटिस्ट। Let us talk about the chrysophytes. Chrysophytes जो है basically it includes the diatoms and the golden algae, that is the desmids. Diatoms are the chief producers in the oceans. अब इसको जो हम स्टडी करेंगे क्रिसोफाइट्स को, विल स्टडी इट अंडर डिफरेंट सब हेडिंग्स। सबसे पहला जो अपन देखेंगे दैट इज़ द हैबिटेट। हैबिटेट की जब हम बात करें तो ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों ही इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। सो लेट अस नोट डाउन द पॉइंट। सबसे पहला जो अपन देखेंगे दैट इज़ द हैबिटेट। हैबिटेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो दे आर फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन। क्लियर? सेकेंड हम देखेंगे दैट इज द न्यूट्रिशन। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो जनरली दे हैव होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोफिटिक का मतलब होता है प्लांट लाइक, यानी दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। सो यहाँ पर कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है, दैट इज होलोफिटिक। होलोफिटिक मीन्स प्लांट लाइक, दैट इज autotrophic or you can say photosynthetic. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर फोटोसिंथेटिक हैं तो इनके अंदर पिगमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन जो देखेंगे दैट इज अबाउट द पिगमेंट्स। पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी प्लस ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल में भी जो इनके अंदर पाया जाता है दैट इज डायएटोज़ैंथिन। डायएटम्स हैं तो डायएटोज़ैंथिन। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज द फ्लैजेला। फ्लैजेला इनके अंदर एब्सेंट रहेगा बिकॉज दे फ्लोट पैसिवली विद द वाटर करेंट्स। वाटर करेंट के साथ ही ये पैसिवली फ्लोट करते हैं बिकॉज ऑफ द स्टोर्ड फैट इन देम। सो विल राइट हियर
flagella absent and they float passively with the water currents. Clear? नेक्स्ट अपन देखेंगे फ्लैजेला के बाद दैट इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन देम. इन क्रिसोफाइट्स द स्टोर्ड फूड मटेरियल इज द क्रिसोलैमिनारिन और ल्यूकोसिन एंड ऑयल. सो विल राइट हियर stored food, that is chrysolaminarin, also called as leucosin and oil. Now in case of the diatoms, if we talk about the cell wall, it forms two thin overlapping shells that fit together as in the case of a soap box. जैसे सोप बॉक्स के अंदर एक तो होल्डर होता है सोप का और एक उसका कवर होता है, सेम इज द केस हियर. ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है डायटम्स के सेल वॉल्स के केस में देखने को मिलता है. सो विल राइट हियर इन डायटम्स द सेल वॉल consist of two thin overlapping shells that fit together as in case of soap box. यहाँ पर जो कवर है उसको हम क्या कह देते हैं, एपीथेका, एंड लोअर शेल को हम कह देते हैं, वी कॉल इट एज द हाइपोथेका. क्लियर? नाउ यहाँ पर जो सेल वॉल है इट इज एम्बेडेड विद द सिलिका डिपॉजिट्स, इट इज रिच इन सिलिका. सो दैट्स व्हाई द डायटम्स दे आर indestructible because on their death they do not decay easily because of the richness of the silica in their wall. So we'll write here, due to silica deposits in the cell wall, they do not decay easily. ये आया हुआ है क्वेश्चन, they do not decay easily, or we can say they are indestructible. Clear? And as a result, on their death, when they settle down, they accumulate in the water body, as a result of which over billions of years they form the structures that are known as the diatomite or the diatomaceous earth. So we'll write here, on their death they accumulate over billions of years and forms diatomaceous earth, also called as diatomite और कीसलगढ़. नाउ इस डायटोमाइट या डायटोमेशियस अर्थ का खुद का अपना इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है. कैसे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, लेट अस कंसिडर द पॉइंट. सबसे पहला जो पॉइंट आता है, बिकॉज ऑफ द सिलिका डिपॉजिट्स, इनका जो सरफेस होता है दैट इज़ रफ, ग्रिटिनेस होता है, खुरदरापन होता है, जिसकी वजह से ये यूज़ होते हैं पॉलिशिंग में. ठीक है, स्टोन पॉलिशिंग में यूज़ होंगे, इसके अलावा फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में यूज़ होते हैं. And because they are bad conductors of heat, they are also used as the heat insulators for the steam boilers. इसके अलावा साउंड प्रूफिंग में भी इनका यूज़ किया जाता है. नाइट रिफ्लेक्टिंग पेंट्स के अंदर भी इनका यूज़ होता है. सो लेट अस नोट डाउन द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस. सबसे पहला जो आएगा दैट इज दे आर यूज्ड इन
soundproofing, then as heat insulators in steam boilers, for stone polishing, for filtration of oil and syrups, and also in night reflecting paints. Clear? So that was all about the chrysophytes. Now after chrysophytes, let us discuss about the dinoflagellates. डाइनोफ्लैजेलेट्स को भी उन्हीं पॉइंट्स के अंदर कंसिडरेशन करते हुए अपन स्टडी करेंगे जैसा कि अपन ने क्रिसोफाइट्स को करा था। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हैबिटेट का। जब हम हैबिटेट की बात करते हैं तो मोस्टली ये क्या देखने को मिलते हैं, दे आर मरीन। क्लियर? नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जैसा कि क्रिसोफाइट्स थे होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे थे, वैसे ही डाइनोफ्लैजेलेट्स भी होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। होलोफिटिक का मतलब होता है प्लांट लाइक, यानी दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर फोटोसिंथेटिक है नेचर में तो इनके अंदर पिगमेंट्स भी मौजूद रहेंगे। कौन से पिगमेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं? यहाँ पर मिलेगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल में भी क्योंकि ये डाइनोफ्लैजेलेट हैं तो कौन सा कॉमनली मिलता है? डाइनोज़ैंथिन। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट विच आर प्रेजेंट इन द सेल, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन और येलो इन कलर। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन पॉइंट पे आएंगे, दैट इज अ फ्लैजेला। क्रिसोफाइट्स के अंदर फ्लैजेला मैंने बोला था एब्सेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर डाइनोफ्लैजेलेट्स के अंदर जो है फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा। दे विल बी 2 फ्लैजेला एंड दे विल बी ऑफ डिसिमिलर टाइप। इस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोकॉन्टे कंडीशन। नाउ स्टोर्ड फूड मटेरियल क्रिसोफाइट्स के अंदर क्या बताया था मैंने? दैट वाज क्रिसोलैमिनारिन और ल्यूकोसिन एंड ऑयल। यहाँ मौजूद होगा डाइनोफ्लैजेलेट्स के अंदर स्टार्च एंड ऑयल। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। जब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर सेल वॉल जो है वो स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट्स के रूप में मौजूद होती है ऑन द आउटर सरफेस। इसकी वजह से एक शील्ड टाइप का कवरिंग बन जाता है इसकी बॉडी के बाहर की तरफ, इसीलिए इसको कॉमनली आर्मर्ड एल्गे भी कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ पर 2 फ्लैजेला हैं ऑफ डिसिमिलर टाइप। तो आप देख सकते हैं एक तो ये ट्रांसवर्स फ्लैजेलम है और एक ये लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेलम मौजूद रहेगा। ये कहाँ पर मौजूद रहते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द फरोज बिटवीन द सेल्यूलोसिक प्लेट्स। फरोज मौजूद होती हैं, वहाँ पर ये फ्लैजेलम प्लेस्ड रहेंगे। नाउ these 2 flagellum, because they are at right angle to each other, as you can see here they are right angle to each other, और ये जब एक साथ बीट करते हैं तो ये एक तरीके का स्पिनिंग मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसी वजह से इनको कॉमनली क्या कहा जाता है? व्हर्लिंग विप्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स। नाउ मैंने बोला है अलग अलग कलर्स के हैं, तो रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स की बात आ रही है। इसमें एग्जाम्पल आता है गोनियोलैक्स का। ये जो रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं एंड दे मेक द सी अपीयर रेड इन कलर, इसीलिए दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड टाइड। प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद द रेड सी। रेड सी के लिए साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ट्राइकोडेस्मियम एराइथ्रियम। यहाँ पर रेड टाइड है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डाइनोफ्लैजेलेट गोनियोलैक्स। क्लियर? अब जब इतने ज़्यादा नंबर में ये मौजूद होता है तो ये टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करता है, और इतने ज़्यादा नंबर में अगर टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा तो इट में इवन किल द अदर मरीन एनिमल। रिमेंबर वन मोर थिंग, कुछ जो डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं दे ऑल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ द बायोल्यूमिनेसेंस, दैट इज दे ग्लोज एट नाइट। इसमें एग्जाम्पल आता है नॉक्टिल्यूका का, जिसको हम सी गोस्ट भी कहते हैं। सो नोट इट डाउन, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस, that is they
glow at night. Some of dinoflagellates glows at night. एग्जाम्पल आएगा नॉक्टिल्यूका, ऑल्सो नोन एज सी घोस्ट। क्लियर? तो इसके कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि इनको क्या कहा जाता है। आर्मर्ड एल्गे भी कहा जाता है, वर्लिंग विप्स भी कहा जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बायोल्यूमिनेसेंस विच सम ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट्स शोज, दे आर ऑल्सो नोन एज द फायर एल्गे। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज फायर एल्गे। क्लियर? सो दैट वॉज अबाउट द dinoflagellates. Now, after chrysophytes and dinoflagellates, let us discuss about the euglenoids. जब हम यूग्लिनॉइड्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द हैबिटेट। जब हम हैबिटेट की बात कर रहे हैं तो जो यूग्लिनॉइड्स हैं जनरली दे आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी। तो यहाँ विल राइट majority of them are freshwater organisms found in stagnant water. क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट अपन कंसिडरेशन में लेंगे दैट इज न्यूट्रिशन। यहाँ पर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज मिक्सोट्रॉफिक, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट they will be autotrophic, that is they can synthesize their own food, but in the absence of light they will be heterotrophic, that is they will be feeding on the other organisms. So we'll write here they show mixotrophic mode of nutrition, that is in the presence of sunlight they will be autotrophic or photosynthetic, and in the absence of sunlight they will be heterotrophic, predating on other small organisms. नेक्स्ट हम बात करते हैं पिगमेंट्स की। अगर फोटोसिंथेटिक होगा तो पिगमेंट्स भी मौजूद होंगे। कौन से पिगमेंट्स मिलते हैं यहाँ पर? देयर इज प्रेजेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी and zeaxanthin. These pigments are similar to that of the plants, similar to that of plants. Clear? Next we'll talk about the flagella. In case of the euglenoids, if we take a common example that is of euglena, इसके अंदर दो फ्लैजेला मौजूद होते हैं। वन इज लॉन्गर दैट इज द फंक्शनल एंड द अदर वन इज द शॉर्टर दैट इज द रिड्यूस्ड और द नॉन फंक्शनल। सो विल राइट हियर टू फ्लैजेला आर प्रेजेंट, वन इज लॉन्गर दैट इज अ फंक्शनल and other is shorter or reduced that is a non-functional. Clear? Next to it comes the stored food material. Stored food की अगर हम बात करें in case of euglenoids then it is paramylum granules. Paramylum granules which are present in the cytoplasm. Clear?
Next we'll talk about the structure of the euglena. Now let us discuss about the structure of the euglena. When we look at the structure, we can see that the anterior end there is present a cavity that is known as the reservoir. From the base of the reservoir there arises the flagellum. One flagellum is the longer one, that is the functional, while the other is the smaller one, that is the reduced or the non-functional. Now this structure is known as the paraflagellar body. At the level of the paraflagellar body there is present a photosensitive spot that is known as the stigma spot. इसको हम क्या कहते हैं? Stigma spot भी कहते हैं, which is a photosensitive spot and consists of a pigment that is astaxanthin. Now at the anterior end there is also present the contractile vacuole. Clear? Now besides it there are present the stored food material, that is the paramyelin granules that are present in the cytoplasm. Then there is present the organized nucleus and the chloroplast. Now outermost layer here is the pellicle, which is a proteinaceous covering, because here the cell wall is absent, and this pellicle helps in providing the flexibility to the organism. Now this was about the structure. Now as we can see here that it shares the properties of both, that is plants as well as the animals. Hence euglena is considered as the most controversial group of the प्रोटेस्टा किंगडम. वैसे ही मैंने बताया था आपको कि जो प्रोटेस्टा है वो खुद भी एक कंट्रोवर्शियल किंगडम है, बिकॉज इट इंक्लूड्स द ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक. और यूग्लेना तो दोनों की प्रॉपर्टीज शेयर करता है, प्लांट लाइक फीचर्स भी देखने को मिलते हैं और एनिमल लाइक भी मिलते हैं. जब हम बात करें प्लांट लाइक फीचर्स की तो यहाँ पर ये क्या है? फोटोसिंथेटिक है. फोटोसिंथेटिक है तो पिगमेंट्स भी मिल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट भी मिल रहा है, दैट आर द फीचर्स ऑफ द प्लांट. इफ़ वी टॉक अबाउट द एनिमल लाइक फीचर्स, एनिमल लाइक फीचर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट? दैट इज सेल वॉल एब्सेंट है. इसके बजाय क्या मौजूद होता है? पेलिकल देखने को मिलता है, विच इज अ प्रोटीनेशियस कवरिंग आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन, एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी यहाँ पर मौजूद रहता है. देन अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूग्लेनॉइड्स. इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली होता है बाय द लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन ही होगा, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं कॉमनली. सो दैट वाज ऑल अबाउट द यूग्लेनॉइड्स. Next to euglenoids, we'll talk about the slime moles. Slime moles are the saprophytic protist. Saprophytic हैं यानी कि ये किस पे फीड करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे. इनको स्लाइम मोल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी वेजिटेटिव जो स्टेज है उसमें बाहर की तरफ एक स्लिमी म्यूसिलेजनस शीथ मिलती है. एक स्लिमी मतलब चिपचिपी शीथ मिलती है, इसीलिए हम इसे स्लाइम मोल्स भी कहते हैं और इनको फॉल्स फंजाई के नाम से भी जाना जाता है. अब क्योंकि ये क्या है? सैप्रोफिटिक है, तो इनकी जो बॉडी है इट मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल. ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करते हुए इनकी जो बॉडी है वो आगे बढ़ती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल वॉल की. जब हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करें विद रिस्पेक्ट टू द स्लाइम मोल्स तो इनके अंदर जनरली सेल वॉल एब्सेंट रहेगा, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर जहां पर स्पोर्स बनते हैं उनके अंदर ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोर्ड फूड की. स्टोर्ड फूड मटेरियल जो होगा इन द केस ऑफ स्लाइम मोल्स दैट इज ग्लाइकोजन एंड ऑयल. नेक्स्ट आते हैं फेवरेबल कंडीशंस. फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये एक एग्रीगेशन बनाता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम. क्लियर? ये प्लाज्मोडियम जो है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा विच इज हैविंग नो डेफिनेट शेप, एंड इसके अंदर स्यूडोपोडिया देखने को मिलते हैं. ये स्यूडोपोडिया जो है ये ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करता हुआ आगे की तरफ स्प्रेड अप होता जाता है. सो इट फॉर्म्स एन एग्रीगेशन कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट. नाउ ये तो बात हो गई फेवरेबल कंडीशंस की, लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, तो उस केस में ये जो प्लाज्मोडियम है ये डिफ्रेंशिएट होकर बनाता है फ्रूटिंग बॉडी यानी स्पोरेंजियम, जिसके टिप्स पे मिलते हैं स्पोर्स. क्योंकि स्पोरेंजियम है तो इसके टिप्स पे क्या मिलेंगे? स्पोर्स पाए जाएंगे.
अब स्पोर्स के फीचर्स आपको ध्यान रखने हैं बिकॉज इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला, जैसा मैंने आपको बताया कि स्पोर्स के अंदर ट्रू सेल वॉल जो होगा वो प्रेजेंट रहता है और ये स्पोर्स जो होंगे दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी ईयर्स तक ये सर्वाइव करते हैं इवन इन द एडवर्स कंडीशन। ये बनते ही एडवर्स कंडीशंस में हैं और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं एंड दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। एंड इनका जो डिस्पर्जल होता है वो किसके थ्रू होता है? थ्रू एयर। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइम मोल्ड इज फाइजेरम। क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्लाइम मोल्ड्स। जब हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोअन्स की बात करते हैं देन दे ऑल आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। या तो ये प्रेडेटर्स हो सकते हैं या ये पैरासाइट्स हो सकते हैं और इनको क्या माना गया है? दे आर कंसिडर्ड एज द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स। अब प्रोटोजोअन्स की अगर हम बात करें तो 4 मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटोजोअन्स के। सबसे पहला जो आता है दैट इज अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, देन इज फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स, then is ciliated protozoans and sporozoans। क्लियर? सबसे पहला अपन देखते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं दे कैन बी फाउंड इन द फ्रेश वाटर, सी वाटर और सॉइल। अब इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया किस लिए काम आता है? मूवमेंट में एंड इन ऑर्डर टू कैप्चर द प्रे। इसके अंदर कॉमन एग्जाम्पल्स आएंगे अमीबा एंड एंटमीबा। एंटमीबा इज पैरासिटिक इन नेचर। देन नेक्स्ट आता है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स। जैसा नाम है वैसा काम है। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स है मतलब इनके अंदर फ्लैजेला पाया जाएगा, तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं एंड दे पोजेस द फ्लैजेला। इसमें जो पैरासिटिक फॉर्म है वो है ट्राइपैनोसोमा विच कॉजेज अ डिजीज दैट इज द स्लीपिंग सिकनेस। देन आते हैं अपन सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। अगेन इनके अंदर सीलिया मौजूद है इसीलिए इनको सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स कहा जाता है। सो दे पोजेस सीलिया, दे हैव अ कैविटी कॉल्ड एज अ गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। अब क्या होगा? जो सीलिया हैं उनके कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के जरिए वाटर अलोंग विद द फूड पार्टिकल्स इट एंटर्स इनटू दिस कैविटी दैट इज द गलेट। एग्जाम्पल इसके अंदर आता है पैरामीशियम दैट इज द स्लिपर एनिमलक्यूल। देन लास्ट अपन देखते हैं दैट इज द स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स जो हैं इनके अंदर इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज मिलती है लाइफ साइकिल के अंदर, इसीलिए इनको स्पोरोजोअन्स बोला जाता है। इसके अंदर कॉमन एग्जाम्पल आता है मलेरियल पैरासाइट दैट इज अ प्लाज्मोडियम। क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा।